ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 47th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ G7 ਮੀਟਿੰਗ। G7 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 47th ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੂਨ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ 19 ਫੈਬਰਰੀ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਅਸਤਰ ਮਾਰਕ 2 ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ? ਏਅਰ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਸਾਈਲ। ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? DRDO ਨੇ। ਮੇਘਨਾ ਪੰਤ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦ ਟੈਰੀਬਲ ਹੌਰੀਬਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਦ ਟੈਰੀਬਲ ਹੌਰੀਬਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਘਨਾ ਪੰਤ ਦੁਆਰਾ। ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਰ ਸਟਰਕ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟੀਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰਬ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਵੂਮਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਰਬ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸ਼ੋਭਨਾ ਕਪੂਰ, ਅੰਤਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੋਨੂ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰੀਤੂ ਗੁਪਤਾ 4 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਸਰਬ ਵੂਮਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2021 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਕ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਬਿਕਮਸ ਫਰਸਟ ਪਲੇਅਰ ਇਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਵਿਕਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 200 ਵਿਕਟਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੂਅਰਟ ਬਰੋਡ ਜੋ ਕਿੱਥੇ? ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਾਰਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਜੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਸਪਲਾਈ 5 ਲੱਖ ਡੋਸਿਸ ਆਫ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ? ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਡੋਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
फर्स्ट बनी है जिसने 100 मैचेस जीते ने T20 इंटरनेशनल मैचेस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिकम फर्स्ट टू स्कोर 100 विन्स इन T20 इंटरनेशनल मैचेस। इंडिया टिल डेट हैज़ रिकॉर्डेड 85 मैचेस। ठीक है जी। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा माँ किचन की शुरुआत की गई है। एक स्कीम गरीब लोगों को कहांगे कि गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए घट पैसे दे खाना प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम शुरू की गई, माँ किचन स्कीम। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर द्वारा ही दीदीर दूत एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर द्वारा ही दीदीर दूत एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल इन द स्टेट। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा अभुदया योजना है जी, इसकी शुरुआत कर दी गई है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग ऑफ कंपीटिटिव एग्जाम्स ने, चाहे वो किसी भी तरीके का थोड़ा कंपीटिटिव एग्जाम हो, UPSC स्टेट PCS या फिर बैंकिंग एग्जाम्स के भी SSC के एग्जाम्स के लिए भी प्रैपरेशन करवाई जाएगी। JEE के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, नीट का एग्जाम हो गया, इसके लिए फ्री प्रैपरेशन करवाई जाएगी किन्ना द्वारा, यूपी द्वारा अभुदया योजना के अंदर। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेल देव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट वर्क ऑफ चितौड़ा लेक इन बहरेच यूपी। डायरैक्टली पूछा जा सकता है चितौड़ा लेक कित्थे है, यूपी दे विच। महाराजा सुहेल देव मेमोरियल कित्थे है, यूपी दे विच। तो यूपी दे विच भी कित्थे है, तो बहरेच दे विच है। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी दे करके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फैसिलिटेट्स वर्क ऑफ मेकिंग केरला एज म्यूजियम हब ऑफ इंडिया। इंडिया का म्यूजियम हब किसनू कहा जाता है, तो केरला नू कहा जाता है। ये याद रखांगे, सब तो ज़्यादा म्यूजियम्स पाए जाते हैं बेसिकली केरला दे विच। और इस दे विच डेवलपमेंट वर्क नू इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली 6100 करोड़ रुपए, काफ़ी वड्डी अमाउंट है, 6100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा केरला दे विच। 23 एंडेंजर्ड घड़ियाल ने जिहड़े रिलीज़ किए गए ने ब्यास रिवर दे विच। घड़ियाल्स नू ब्यास रिवर दे विच रिलीज़ किया गया छतबीड़ जू तो जीरकपुर तो, जिन्हां नू लियाया कित्थों गया सी, मोरियाना मध्य प्रदेश तो घड़ियाल लियाए गए सी छतबीड़ जू दे विच। हुण इन्हां नू ब्यास रिवर दे विच रिलीज़ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट पंजाबी दे विच अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं स्टैटिक पोर्शन दे विच बैडमिंटन डिस्कस कर रहे हैं। तो अग्रवाल कप बैडमिंटन, अग्रवाल कप, सोफिया कप, एशिया कप, थॉमस कप, चड्डा कप, ऊबर कप, नारंग कप, योनेक्स कप, कोनिका कप और ऑस्ट्रेलिया कप किस दे नाल बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन दे नाल बिलोंग करते हैं। चड्डा पूछा जा चुका है, नारंग पूछा जा चुका है, ऊबर और योनेक्स ये कुछ ऐसे ने जो रिसेंटली पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सैक्शन यानी कि अज की फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वाल। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी विल कमीशन इट्स थर्ड डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन by which name in March 2021 which was delivered by Mazagon Docks। Mazagon Docks द्वारा डिलीवर की गई है तीसरी डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन। तीसरी डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन का की नाम है, तो इसका नाम है INS कारंज इसका नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखांगे। INS कारंज इसका नाम है। तीसरी डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन सबमरीन है, टोटल 6 आनियां ने, तीसरी है जिसनों इंडक्ट कर लिया गया है। ठीक है, अंडर प्रोजेक्ट 75, ये याद रखांगे, अंडर प्रोजेक्ट 75। ठीक है, और स्कॉर्पियन का मतलब इत्थे एक कैटेगरी है
जो कैटेगरी बेसिकली किस दे नाल बिलोंग करती है, फ्रेंच टैक्नोलॉजी दे नाल। ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। स्कॉर्पियन का मतलब इत्थे एक कैटेगरी है जो कि फ्रेंच टैक्नोलॉजी दे नाल बिलोंग करती है, ठीक है। यानी कि फ्रेंच टैक्नोलॉजी की हैल्प के नाल इसनूं बनाया गया है, INS कारंज नूं प्रोजेक्ट 75 के अंडर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ Redmi 9 पावर स्मार्टफोन्स बाय Redmi इंडिया। Redmi इंडिया द्वारा Redmi 9 पावर स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एंबेसडर किन्हां नूं बनाया गया है, सोनू सूद नूं बनाया गया, ठीक है। सोनू याद होएगा आप डिस्कस किया सी हर हाथ कलम इनिशिएटिव, हर हाथ कलम इनिशिएटिव के लिए भी Redmi इंडिया ने पार्टनरशिप की सी सोनू सूद के नाल। हुण इन्हां नूं Redmi 9 स्मार्टफोन्स सीरीज़ है जो इस दे ब्रांड एंबेसडर बना दिता गया, ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा Redmi दे सोनू सूद ने तो रियलमी दे याद रखेंगे, रियलमी दे बनाया गया सी सलमान खान नूं। युवराज सिंह की गल करते हैं, आकाश इंटरनेशनल का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। आकाश इंटरनेशनल नूं बायजूस द्वारा एक्वायर कर लिया गया, याद रखेंगे। बायजूस दे जो एंबेसडर ने उन्हें शाहरुख खान, ठीक है। बायजूस नूं ही ICC के लिए ग्लोबल पार्टनर बनाया गया 3 सालों के लिए, याद रखेंगे, 21 तो लैके 23 तक के लिए। आमिर खान बनाए गए सी सीएट टायर्स के ब्रांड एंबेसडर। इस तो इलावा वेंदातू दे भी ब्रांड एंबेसडर आमिर खान बनाए गए सी। विराट कोहली ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी, ठीक है। सुनील शेट्टी की गल करते हैं तो सुनील शेट्टी नूं नाडा के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इस तो इलावा सोनू सूद की गल करते हैं, इस तो इलावा इन्हों एसर का ब्रांड एंबेसडर बनाया जा चुका है। पंजाब के इलैक्शन यूथ आइकन बनाए गए सी, ठीक है। इन्हों ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिता गया सीगा, ये याद रखेंगे। इस तो इलावा पैटा वैजीटेरियन अवार्ड भी नामित किया गया सी सोनू सूद नूं, ये याद रखेंगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं होर की डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा पैटा वैजीटेरियन इन्हां दे नाल श्रद्धा कपूर सीगे, ठीक है। पैटा अवार्ड इस साल जॉन इब्राहिम नूं दिता गया, याद रखेंगे। इन्हां दी बुक है I Am No मसीहा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है नमन ओरजा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। नमन ओरजा किस स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड ने, तो नमन ओरजा क्रिकेट के नाल रिलेटेड ने, न्यूज़ दे विच रहे ने, इन्होंने रिटायरमेंट ली है। नमन ओरजा ने रिटायरमेंट ली है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है जी। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली विकेट कीपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स ने विकेट कीपिंग के उत्ते इन्हां दे नाल, ठीक है। इस तो इलावा फुटबॉल, बाकी अगर गल करते हैं तो स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस कर लेने। फुटबॉल के संदेश जिंगन का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अर्जुन अवार्ड्स की अगर आप गल करते हैं, संदेश जिंगन फुटबॉल। टेनिस दे विच अगर आप अवार्ड्स की गल करते हैं अर्जुन अवार्ड की, तो दिविज शरण का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिविज शरण। क्रिकेट दे विच 2 नाम डिस्कस किए थे आप हमेशा, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा। शूटिंग दे विच मनु भाकर सौरभ चौधरी। रैसलिंग दे विच दिव्या काकरम का नाम इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नाम मेरे माइंड चो स्किप कर रहा है। रैसलिंग दिव्या काकरम, राहुल अवारे। दिव्या काकरम और राहुल अवारे रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं और इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया सी। नेक्स्ट है RBI हैज़ set up a committee to provide a roadmap for strengthening the urban cooperative banking sector headed by RBI ने एक कमेटी बनाई किस दे लई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सैक्टर के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सैक्टर के लिए, शॉर्ट फॉर्म के UCB लिखा आ सकता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इन्हां दे लई कमेटी बनाई गई है। कमेटी के हैड बनाए गए ने NS विश्वनाथन कौन ने? NS विश्वनाथन फॉर्मर
आरबीआई ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ NS ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1935 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। RS ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ? ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ RS ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਯੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜਯੰਤੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੰਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੰਤ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ। ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀडम फाइटर्स ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ of UNCDF ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿਨਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਪਰਸਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਦੇ? UNCDF ਦੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿਨਹਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਚਾਰੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ UN ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਸਿਧਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UN ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ। ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਸਿਧਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ। M ਰਾਮਾ ਜੋਇਸ ओबिचुरी है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट और गवर्नर रह चुके ने बिहार और झारखंड के गवर्नर रह चुके ने। करंट बिहार के गवर्नर फागू चौहान, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने, और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके ने M रामा जॉयस, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक है, ज्यूरिस्ट रह चुके हैं यानी कि जज रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा नाम M रामा जॉयस। नेक्स्ट है अजय मल्होत्रा और अजय पाटिल। अच्छा, अजय मल्होत्रा और अजय पाटिल, तो अजय माथुर का नाम याद आया होगा। अजय माथुर की बनाए गए ने? डायरैक्टर जनरल बनाए गए ने। किसदे बनाए गए ने? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा दे विच है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ते, ठीक है, वो भी याद रखांगे। इस तो इलावा अजय मल्होत्रा फर्स्ट इंडियन बने ने जिन्होंने चेयरपर्सन बनाया गया एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसल दा, UN ह्यूमन राइट्स काउंसल, यूनाइटेड नेशंस दी ह्यूमन राइट्स काउंसल जिसका हैडकुआटर जेनेवा दे विच है, काफ़ी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिसेंटली हैड बनाए गए सी नजहत शामीन इसके हैड बनाए गए सी, और इसकी एडवाइजरी कमेटी के हैड बनाए गए ने अजय मल्होत्रा, पहले इंडियन बने ने इस पोस्ट के उत्ते, नाम इंपोर्टेंट रहेगा। अजय पाटिल की गल करते हैं तो अजय पाटिल चीफ बनाए गए ने एशियन जोन के ऑल इंडिया चैस फैडरेशन द्वारा, ऑल इंडिया चैस फैडरेशन की मीटिंग के विच एशियन जोन के चीफ कौन बनाए गए ने, अजय पाटिल, ठीक है। अच्छा, अगर ऑल इंडिया चैस फैडरेशन की गल करते हैं, इसका हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है, और संजय कपूर इसके हैड ने, ठीक है। चैस की ही अगर ऑर्गेनाइजेशन की गल करते हैं तो फाइड है, चैस की जो हैड ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फाइड लॉजेन के विच हैडकुआटर है, इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। बेसिकली इंपोर्टेंट की रहेगा कि किन्ना ने शुरुआत की है ई छावनी पोर्टल, जी कैंट प्लेसिस होंगे ने, ठीक है। कैंट फॉर एग्जाम्पल अंबाला कैंट आप डिस्कस करते होंगे, ठीक है। ये जिन्नी भी कैंट प्लेसिस ने इन्हों के 62 के शुरुआत की गई है ई छावनी पोर्टल की अंडर कैंटोनमेंट एक्ट याद रखांगे 2006, कैंटोनमेंट एक्ट कदों का है 2006 का है, ठीक है। इस तो इलावा इसकी शुरुआत क्यों की गई है, बेसिकली म्यूनिसिपल सर्विसिज प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है जी। जी सर्विसिज होंगे ने फॉर एग्जाम्पल कोई आधार कार्ड के चेंजिज ने या कोई बिल वगैरह है, ठीक है, इलैक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इन्होंने सर्विसिज को पहुँचाने के लिए। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस की गल करते हैं तो निर्मला सीतारमन फाइनैंस मिनिस्टर, राज्यसभा MP करनाटका, स्मृति ईरानी अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री प्लस WCD मिनिस्ट्री यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल लवे 4 इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ने काफ़ी बार डिस्कस की अपने, रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इस तो इलावा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन्होंने लवे राज्यसभा MP महाराष्ट्र तो ने। नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो लोकसभा MP ने, MSME मिनिस्टर ने, प्लस इन्होंने लवे जी मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है हु इज अवॉर्डेड विद सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020, सेंचुरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्ना नूं दिता गया, लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड दिता गया एस थियोदोरे भास्करन, बेसिकली तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल। बाकी 2 ऑप्शनस ने जिहड़े इन्हां रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले एस थियोदोरे भास्करन इन्हों तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं, इन्हों के लिटरेचर के फील्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड दिता गया, ठीक है। बेसिकली लिटरेचर के इन्होंने पोइम्स लिखिया ने एनवायरनमेंट की सेविंग के लिए, इन्वायरनमेंट को बचाने के लिए पोइम्स लिखिया ने, जिस करके सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड किन्हों दिता गया एस थियोदोरे भास्करन, ठीक है। हर्षवर्धन श्रिंगला फॉरेन सैक्रटरी ने इंडिया दे और 2 दिन की विजिट ते ने मॉस्को, रशिया की विजिट ते ने 2 दिन की, ऑन इनविटेशन ऑफ रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर इगोर मोरगुलोव, ठीक है। नाम बेसिकली हाईलाइटर रहा है, इस करके इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कौन ने, तो इगोर मोरगुलोव ने, ठीक है। वैसे रेयर चांस है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। 2 दिन की विजिट मॉस्को रशिया, डायरैक्टली फॉरेन सैक्रटरी पूछे जा सकते हैं इंडिया के, तो हर्षवर्धन श्रिंगला। अफसारा तंसीम
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਦੋਰਾਏ ਸਵਾਮੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਦੋਰਾਏ ਸਵਾਮੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਾਰਾ ਤਨਸੀਮ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਚੁਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ who has addressed in the 29th edition of NASSCOM Technology and Leadership Forum। NASSCOM Technology and Leadership Forum ऑर्गेनाइज किया गया किस थीम के अंडर? शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड्स अ बेटर नॉर्मल। शेपिंग द फ्यूचर टुवार्ड्स अ बेटर नॉर्मल 29th एडिशन सीगा। किसने एड्रैस किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस दे विच एड्रैस किया गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा नैसकॉम की गल करते हैं, नैसकॉम इंपॉर्टेंट रहेगी। नैसकॉम नेशनल एसोसीएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसीएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कॉम यानी कि कंपनीज। ठीक है जी, इसनूं 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ UB ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਓ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। UB ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਓ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨੈਸਕॉम ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ क्रीड़ा स्थल ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਾਨਾ ਹਿਲਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਵਾਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਕਾफ़ी ज़्यादा ਵਾਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀੜਾ ਸਥਲ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੁਆਰਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ पेयजल सर्वेक्षण की शुरुआत की। एक सर्वे किया जाएगा, पेयजल सर्वे शुरुआत की गई है 10 सिटीज़ दे विच। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्नी सिटीज़ दे विच? तो 10 सिटीज़। इनिशिएटिव का नाम जल जीवन मिशन के अंडर। शुरुआत किसने की है? हाउसिंग मिनिस्टर ने की है। ठीक है, इतने कन्फ्यूज़ करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जरूर होएगा क्योंकि वो जल शक्ति मिनिस्टर ने, लेकिन याद रखेंगे शुरुआत की है हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने। ठीक है, 10 सिटीज़ के अगर पंजाब की गल करते हैं तो पटियाला सिटी इंकलूडिड है। ठीक है, 10 सिटीज़ ने, डिफरेंट सिटीज़ ने, यूपी की सिटीज़, MP की सिटीज़ ने, पर अपने लिए सिंपल याद रखेंगे कि टोटल 10 सिटीज़। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फाउंडेशन स्टोन, अगर आप गल करते हैं तमिलनाडु विच होर इंपोर्टेंट फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल तूथूकुड़ी नैचुरल गैस पाइपलाइन, तूथूकुड़ी नैचुरल गैस पाइपलाइन। इस तो इलावा गैसोलीन डू सल्फ्यूराइजेशन यूनिट किथे? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मनाली। ठीक है, तमिलनाडु दे विच भी मनाली एक प्लेस है जिथे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दे विच गैसोलाइन सल्फ्यूराइजेशन यूनिट और तूथूकुड़ी नैचुरल गैस पाइपलाइन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है, इस तो इलावा कावेरी बेसिन रैफाइनरी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया नागापट्टिनम दे विच, नागापट्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021 गिवन बाय बायो एशिया अ बायोटेक्नोलॉजी फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। बायो एशिया पहले तो याद रखेंगे, बायो एशिया एक बायोटेक्नोलॉजी फोरम है जो कि तेलंगाना सरकार के अंदर आती है, तेलंगाना गवर्नमेंट चलाती है जिसनों। इसने अवार्ड दिता है जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड।
जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसनू दिता है? तो भारत बायोटेक नू दिता है। ठीक है, भारत बायोटेक। पहले तो भारत बायोटेक रिलेटेड ही डिस्कस कर लेने कि भारत बायोटेक एक कंपनी है जो कि 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाई गई सी, हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ हैडक्वार्टर है। ठीक है, भारत बायोटेक का हैडक्वार्टर कितने है? हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ है। कृष्णा एम ईला इस दे हैड ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गल करते हैं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के हैडक्वार्टर है, या रखांगे आधार पूनावाला इस दे हैड ने। जाइडस कैडिला का हैडक्वार्टर अहमदाबाद के है। ठीक है, तीनों प्लेसिस इंपोर्टेंट ने, तिन्हों की विजिट की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इस करके इंपोर्टेंट ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड शील्ड वैक्सीन बनाई, उत्थे ही भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई। कोविड शील्ड और कोवैक्सीन इंडिया की दो इंपोर्टेंट वैक्सीन्स ने, याद रखांगे। भारत बायोटेक नूं कोवैक्सीन बनाने के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिता गया। ठीक है, कोविड शील्ड वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैड आधार पूनावाला नूं भी अवार्ड दिता गया सी, एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड समथिंग। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है रखीने स्टेट इज इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? रखीने स्टेट है जो, यह किस कंट्री दे विच लोकेटेड है? तो रखीने स्टेट लोकेटेड है म्यांमार दे विच। ठीक है, रखीने स्टेट कित्थे लोकेटेड है? म्यांमार दे विच लोकेटेड है। ठीक है, न्यूज़ दे विच की है पूरी डिटेल डिस्कस कर लेने। बाकी कंट्रीज रिलेटेड भी न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले म्यांमार दे विच कलनदान, तुसीं सुनिया होगा, पहले भी डिस्कस किया होया आपां ने। कलादान रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, ये जो कलादान रोड प्रोजेक्ट है ये की करता है? इंडिया के कोलकाता पोर्ट नूं म्यांमार के सितवे पोर्ट के नाल कनैक्ट करता है। ठीक है, डायरैक्टली पूछा जा सकता है सितवे पोर्ट कित्थे है, किहड़ी कंट्री दे विच है? म्यांमार दे विच। ठीक है, जिस तरीके नाल कामागाटो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। कोलकाता पोर्ट जिसनूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम नाल जानिया जाता है, इसनूं सितवे पोर्ट के नाल कनैक्ट किया जाएगा। ठीक है, कलादान प्रोजेक्ट के अंडर यह डिले हो रहा है ड्यू टू रोहिंग्या ट्राइब। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोहिंग्या ट्राइब कित्थे पाई जाती है? म्यांमार दे विच पाई जाती है। इसनूं बेसिकली की है कि म्यांमार की जो प्लेस है जिथे इसनूं कनैक्ट किया जाना है सितवे पोर्ट के नज़दीक, उत्थे रोहिंग्या ट्राइब है। ठीक है, हुण रोहिंग्या ट्राइब करके यह पोर्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने डिसप्लेस करना पएगा अगर इस पोर्ट नूं कंप्लीट करना है। हुण इस प्रोजेक्ट नूं पूरा करने के लिए की कहा गया सी कि इन्हां नूं की करा जाएगा? शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट कित्थे किया जाएगा? ये इंपोर्टेंट रहेगा। बस्टर आइलैंड कित्थे है? बस्टर आइलैंड बांग्लादेश दे विच है। बस्टर आइलैंड जो कि बांग्लादेश दे विच है, उत्थे रोहिंग्या ट्राइब नूं आपां पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोहिंग्या ट्राइब नूं की किया जाएगा? डिसप्लेस किया जाएगा, उत्थे भेजा जाएगा। और यह पोर्ट इस करके काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, इस पोर्ट नूं बेसिकली काफ़ी पहले तैयार होना चाहिए सी, तकरीबन 4 या 5 साल डिले हो रहा है। अनाउंसमेंट की गई है ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा। नेक्स्ट है रशिया द्वारा प्रोग्रेस 77 या MS-16 कहांगे कार्गो स्पेस क्राफ्ट नूं लॉन्च किया गया कजाकिस्तान तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बाय रोसकोसमोस की है रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, जिस तरीके नाल इंडिया की इसरो है उसी तरीके नाल रोसकोसमोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोग्रेस 77 क्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट किहड़ी कंट्री का है? रशिया का। ठीक है, बांग्लादेश द्वारा पहला फागुन फैसटिवल ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग के तौर पर। ठीक है, बसंत के पहले दिन के तौर पर पहला फागुन फैसटिवल। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किहड़ी स्टेट दे विच बनाया जाएगा? ठीक है, ये न्यूज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन यह फैक्ट इंपोर्टेंट है। इस दे विच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कित्थे? उड़ीसा दे विच। सो नहीं याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि उड़ीसा होस्ट करेगा इंटरनेशनल मैन हॉकी कप। ठीक है,
कित्थे होस्ट करेगा? दो प्लेसिस डिस्कस कीतियां सी, एक ओडिशा सॉरी एक भुवनेश्वर एक रोयकेला। भुवनेश्वर दे विच कलिंगा स्टेडियम और ओडिशा दे विच सॉरी रोयकेला दे विच की कहा सी कि एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, एक स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि इंडिया का सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम होएगा। ठीक है, तो हुण उस हॉकी स्टेडियम का नाम अनाउंस किया गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, पूरी डिटेल इत्थे लिखी हुई है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया के लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम रोयकेला डिस्ट्रिक्ट दे विच, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम के उत्ते रखा जाएगा। ठीक है, यह मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2023 का अलॉन्ग विद कलिंगा स्टेडियम ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, इसी तरीके नाल वूमेन्स हॉकी कप याद रखांगे 2022 दे विच है, स्पेन और नीदरलैंड मिलके होस्ट करनगे, स्पेन और नीदरलैंड होस्ट करनगे। नेक्स्ट है तेलंगाना दे गवर्नर तमिलाई सौंदराजन तेलंगाना के गवर्नर ने फर्स्ट वूमेन गवर्नर ने इन्हों एडिशनल चाह दिता गया लैफ्टिनेंट गवर्नर का किस यूटी के लैफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिता गया पुडीचेरी। बेसिकली किरण बेदी IPS ने यह गवर्नर से लैफ्टिनेंट गवर्नर पौंडीचेरी दे, इन्होंने की दिता रेजिग्नेशन दिता है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिता है। प्रेजिडेंट कौन ने? रामनाथ कोविंद नूं रेजिग्नेशन दिंदे हुंदे ने, तो रेजिग्नेशन दिता, असैप्ट किया गया। असैप्टेशन तो बाद तमिलाई सौंदराजन नूं एडिशनल चार्ज दे दिता गया है तेलंगाना गवर्नर ने जो पौंडीचेरी का। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। सब तो पहले पौंडीचेरी रिलेटेड आप न्यूज़ डिस्कस कर ली है। ठीक है, इस तो इलावा पौंडीचेरी द्वारा ही जीरो कोविड बाय February 28 कैंपेन कैंपेन की भी शुरुआत की गई है। यूनियन टैरेटरी के विचों COVID-19 केसिस नूं पूरी तरीके नाल एलीमीनेट करने के लिए। ठीक है, दिल्ली पुलिस नूं एक तो आप अवार्ड डिस्कस किया, रिपब्लिक डे के उत्ते अवार्ड दिता गया। एक 74th फॉर्मेशन डे भी ऑबजर्व किया दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 74th फॉर्मेशन डे ऑबजर्व किया गया। ठीक है, एशियन फेस्टिवल कानचौथ फेस्टिवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की चेनाब वैली रीजन दे विच, कानचौथ फेस्टिवल और ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी, आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।